Good morning, children. Welcome back to our EVS class. Now, here is a chapter named Water for All. Water for All. Now, in the last video or in the last chapters, we have learned about plants, animals, and of course, air. So, air, as I told you earlier in the last videos, that air is very important for all human beings. So we need to breathe, we need air to breathe in. So it is very important. Animals and plants, they also depend on air. So the next chapter, the very important substance that we need to live, or life has to go on, human beings, even plants, even animals, even each and every creature that is breathing, we all need water to live. That is why the chapter has been named Water for All. Pani sabke liye, because pani, water is very important, very necessary thing for all the human beings, even for the plants, even for the animals. So it has been said water for all. पानी सभी के लिए. और पानी इस चैप्टर में हम देखेंगे why water is important for us, कहाँ से हमें पानी मिलता है, पानी कैसे गंदा हो जाता है, what are the sources that from which we are getting the water, what are our duties to make the water not dirty. So there are major things that are making the rivers, making the water impure, and there are certain steps also that the government, even we also can take the step to make the water pure and clean. So these are the things, children, you are going to learn in this chapter, Water for All. So here is a beautiful exercise for you all. Let me tell you what about this. You have some excess water in your bottle. Where should you pour it out? Okay, now try to understand this activity, children. See, the wash basin is there and the green plant is there. You can see two of the pictures. अब suppose if you are coming to school, आप जब अपने घर जाते हैं, you always स्कूल में कैरी करते हो अपनी वाटर बॉटल, कभी कभी पूरी ख़त्म हो जाती है, कभी उसमें थोड़ा सा पानी रह भी जाता है. सो व्हाट वुड यू लाइक टू डू? कभी हम क्या करते हैं, उस पानी को ऐसे ही फेंक देते हैं कहीं ज़मीन में या कोई भी अनवांटेड जगह जहाँ पर नहीं गिराना चाहिए. सो हियर द क्वेश्चन इज, इफ़ यू आर हैविंग द एक्सेस वाटर, थोड़ा ज़्यादा पानी आपकी बॉटल में बच जाता है और आपको अब उसे फेंकना है, तो आप क्या करोगे? ये वॉश बेसिन में डाल दोगे या इस ग्रीन प्लांट को दे दोगे? हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? इफ़ सपोज आप इस वॉश बेसिन में डालते हो, देन व्हाट विल हैपन? वो बाहर निकल के ड्रेनेज हो जाएगा, नालियों में चला जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा. बट सपोज आप अगर एक ग्रीन प्लांट को पानी दे देते हो, तो प्लांट विल ग्रो अप, वो उसका खाना हो जाएगा, सॉइल में पानी पहुंच के प्लांट्स को अच्छे से, पौधों को पानी मिल जाएगा और प्लांट्स फिर से ग्रीन हो जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट द गुड यूज़ ऑफ वाटर. Where should you pour it out? Yes, definitely you are going to pour it out in the green plant. So let's start the chapter now. We all drink water. हम सब क्या पीते हैं? Of course पानी पीते हैं, और बहुत सी चीज़ें, like you people तो very much interested in drinking cold drinks and all, but कहीं ना कहीं से उसमें amount water का होता ही होता है. Many cold drinks, many cocktails are there. But basically what we drink is water, the plain water. Animals also drink water. Then plants need water to grow. See, animals also, they also have to quench their thirst. उन्हें भी प्यास लगती है. अगर जंगलों में हैं तो नदी किनारे अपने जाके वो लोग पानी से प्यास बुझाते हैं. अगर वाइल्ड एनिमल्स हैं तो भी वो अपनी प्यास नदी में और नहरों के किनारे जाके पीते हैं, जो कि जंगल में बह रही होती है. अगर वो डोमेस्टिक है तो हम उन्हें बड़े बड़े कैंस में पानी रख के देते हैं. सो दिस वे दे ऑल्सो नीड वाटर. विदाउट वाटर नो वन कैन लिव. सो चिल्ड्रेन, पानी के बिना कोई भी नहीं जिंदा रह सकता है. एवरीबडी शुड डाई इवन फॉर मोर देन 2 hours if we don't get, if for 2 hours we don't get water, especially in the summers, so we all get very हम बहुत ही impatient हो जाते हैं, comfort नहीं feel करते हैं. So water is all our need, very essential need, children. बहुत ही बड़ी ज़रूरत है, very important for all of us to get water. Without water nobody can live. See, in the very first picture, the girl is drinking water from the jug and with the help of the glass. In the second picture, you can say the cow is drinking
water from a pond, or we can say from the river. And here see, even the small little bird, the tiny bird is also having the water from a pipe from where the water is coming out. So each and every creature is having the water. So here in the next page, do you know where water comes from? Now the question is, children, you have to pay attention कि ये पानी आता कहाँ से, हमें मिलता कहाँ से. So children, water comes from rain. ये जो बारिश होती है ना, बरसात होती है, उसका पानी. Water comes from rain. जब बारिश होती है तो पानी आ जाता है. और जब बारिश होती है ना, when it rains, the rain water gets collected in ponds. तो बेटा वो जो बारिश का पानी होता है वो ponds में, लेक में, रिवर में, even in seas also, बड़े बड़े समुद्र में इकट्ठा हो जाता है. Some water is found on mountains in the form of snow and ice. और जो वाटर है, बड़े बड़े जो हम लोग हाउस माउंटेन पीक्स देते हैं या बहुत इन्जॉय करते हैं स्नो पीक्स को देख के, वो भी कहीं ना कहीं वाटर फॉर्म में ही रहते हैं, बिकॉज वो जम जाते हैं तो स्नो बन जाते हैं. लेकिन जब स्नो मेल्ट होती है तो माउंटेन से जो नदियाँ आती हैं वो और भी तेज़ धारा से बहने लगती है, क्योंकि मेल्ट होने लगती है. और ये जो बर्फ़ होती है ये भी पानी बन जाता है. हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अपनी फ्रिज में, जब हम आइस को स्टोर करते हैं और आइस होती है तो वो बर्फ़ जमा होता है. जब हम उसे फ्रिज से बाहर निकाल देते हैं तो हम ज़रूर देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद पानी जो है वो क्या हो जाता है, आइस जो है वो मेल्ट हो जाता है. अगेन इट फॉर्म्स इनटू अ वाटर. आइस सॉलिड जो फॉर्म में रहती है वो लिक्विड वापस बन जाती है, वो मेल्ट हो जाती है, तो स्नो जो है वापस पानी बन जाता है. So rain comes from, water comes from rain. This point to remember, water comes from rain. When it rains, जब बारिश होती है तो रेन वाटर कहाँ कहाँ कलेक्ट होता है? Ponds, lakes, river and seas. And some water is found on where? Yes, of course, mountains in the form of ice and snow. We can see the beautiful picture of rain, and the pond is getting all completely filled with the rainwater. So the next, when the snow melts, अब जब ये माउंटेन की स्नो बेटा मेल्ट होती है, वाटर फ्लोज डाउन इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. तो जो पहाड़ की नदियाँ होती हैं उसमें वो पानी बहने लगता है, या तो नदियों में चला जाता है. एंड स्ट्रीम्स इज़ अ स्मॉल फॉर्म ऑफ रिवर, थोड़ा नैरो होती है, पतली नदियाँ होती हैं, दे आर नोन एज स्ट्रीम्स. Some rivers form waterfalls on their way. अब जब पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं ना तो कहीं कहीं उन्हें ऐसे भी रास्ते मिल जाते हैं जो कि डाउनफॉल होते हैं, पहाड़ से नीचे ज़मीन पे उनको गिरना होता है, तो वहाँ से वाटरफॉल्स ब्रेक हो जाते हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं, नेचर को ब्यूटी देते हैं. बट नदियों का तो काम ही होता है बहना, वो बहती जाती हैं चाहे रास्ते में कोई भी आए, तो वहाँ पर वाटरफॉल्स बन जाते हैं. सम रेन वाटर ऑल्सो गोज इन टू द सॉइल. अब मैनी टाइम्स वी हैव सेट द एग्जाम्पल कि जो बारिश का पानी होता है, देखो कभी ग्राउंड में हम उसे देखते हैं जम जाता है, पूरा भर जाता है, एंड आफ्टर 1 hour और 2 hour वी कैन ऑब्जर्व कि वो पानी गायब हो जाता है. वो पानी कहाँ जाता है? यस, ज़मीन या मैदान में जो भी पानी होता है वो सॉइल उसे ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर भर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है. इट मीन्स दिस वाटर कलेक्ट्स अंडर द ग्राउंड. यस चिल्ड्रन, ये जो पानी है वो ग्राउंड वाटर में कलेक्ट, अंदर जो ग्राउंड होता है उसमें कलेक्ट हो जाता है. और वो पानी फिर हमें मिलता कैसे? हाउ डू वी गेट दैट वाटर? यस ऑफ कोर्स, पीपल डिग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स टू गेट ग्राउंड वाटर. लोग जो है अब जब कुएँ खोदते हैं या ट्यूबवेल्स खोदते हैं टू गेट दैट ground water. Even the hand pump is very common. You can see the picture of a hand pump. You must have seen around you this kind of pump, and on the village areas also hand pump dekha. So hand pump is commonly used to get underground, to get ground water in villages. So बेटा ये जो हैंड पम्प है, ये पिक्चर है, ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है विलेज एरियाज़ में. पानी जो ज़मीन के अंदर रहता है उसे निकाला जाता है, इसके बहुत ही पम्प पाइप्स को नीचे की तरफ ज़मीन के नीचे डाल दिया जाता है, और फिर जब हम उसकी हेल्प से पानी खींचते हैं तो हैंड पम्प हमें पानी दे देता है. सो टू गेट ग्राउंड वाटर, अगेन आई एम टेलिंग यू, टू गेट ग्राउंड वाटर we need this hand pump. With the help of the hand pump we get
the groundwater, especially in the village. We can see the picture of a well also. पुराने टाइम पे कुएं हुआ करते थे गांव में, खेतों में बहुत गहराई में खुदाई की जाती थी तो पानी मिल जाता था। फिर उसमें बड़े बड़े राजा या जो गांव के जो अच्छे लोग रिच होते थे वो लोग उसके चारों तरफ अपना ईंट पत्थरों से ब्रिक्स बना के लंबा लंबा वो ऊपर तक होल जैसा राउंड राउंड बना देते थे और उसमें फिर वो पुली लगा देते थे, रस्सी को नीचे डाल के बाल्टी को, उससे से खींच लिया जाता था पानी को. सो दिस इज ऑल फॉर द वाटर दैट वी गेट. Then what next? Water of ponds, lakes and river is not clean. So here the chapter is telling us कि जो नदी का पानी होता है, रिवर का पानी होता है, तालाब का पानी होता है, वो क्लीन नहीं होता. So it is not fit for drinking. इसलिए वो पीने में भी उतना अच्छा नहीं होता. Not fit for drinking. This water becomes dirty due to the following activities. और बहुत सी activities में से few of the activities that we are going to see कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिससे कि पानी जो है वो डर्टी हो जाता है या अनक्लीन हो जाता है. सो लेट्स सी. So the very first point that has been given in your book is throwing garbage into water bodies. क्या चीज़? जब हम garbage, गंदे कूड़ा करकट को फेंकते हैं पानी में, water bodies means the river, the ponds, the lakes, उसमें जब डालते हैं तो ये सारे water bodies को garbage, हमारा कूड़ा गंदा कर देता है. Washing clothes near water bodies. जब हम कपड़े बेटा धुलते हैं पानी में, बहुत से गाँव में किनारे हम देखते हैं लोग अपने कपड़ों को इकट्ठा करके नदी किनारे चले जाते हैं, इवन अपने एनिमल्स को भी लेके चले जाते हैं, उससे भी हमारी नदियाँ नहरें सब गंदी हो जाती हैं. बेदिंग एनिमल्स, यस दिस पॉइंट हैज़ बीन मेंशन. बेदिंग एनिमल्स इन वाटर बॉडीज़. नदियों में नहरों में लोग अपने जानवरों को नहलाते हैं. वी कैन सी द पिक्चर्स. सी द वुमन इज थ्रोइंग द गार्बेज, वॉशिंग द क्लोथ्स एंड द मैन इज वॉशिंग is taking a bath of his cow. अपने काऊ को नहला रहा है या आई थिंक बफलो को नहला रहा है. So there are points and measures with which we can get the water clean. We should always drink clean water. So here the point has been mentioned. We should always drink clean water. हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए. We should boil or filter the वाटर बिफोर ड्रिंकिंग. हमें पानी को पीने से पहले या तो बॉयल कर लेना चाहिए या फिल्टर कर लेना चाहिए. सी नाउ अडेज इट इज़ वेरी कॉमनली यूज. यू ऑल मस्ट बी हैविंग द आर ओ और द फिल्टर ईयर एट होम. सो बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉयल करने से क्या होता है बेटा? जर्म्स को वो मार देता है जो कि पानी में प्रेजेंट होते हैं. Nowadays different types of water filters are used to purify water. Just now I've told you. Do you have one at home? Yes, my all children are very much familiar with this instrument or the object. See, the first picture is of boiling water. Then we can drain the water with पानी है उसमें देखो अच्छे से साफ कपड़ा लगा के उसको छान रहे हैं. एंड द नेक्स्ट इज द वाटर फिल्टर की ये फ़ोटो है. ऐसे आर ओ हमारे एक्वागार्ड आर ओ, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ प्योरीफायर्स. सो इन दिस वे वी कैन purify the water. So things to remember, few points. We need water. Yes, of course we need water. Animals and plants also need water. Yes, they also need water. We should never throw garbage into the water. Yes, we all need to promise children that we are not going to make our water bodies dirty. We should always drink clean and fresh water. And one thing to remember, you children, हमेशा if water is there inside the glass or any mug or any jug, always remember that it should be closed with the lid or any of the plate or any of the, if you are using in the bottle, तो bottle की कैप हमेशा पानी पे लगी होनी चाहिए. कभी भी खुला पानी ऐसे ही नहीं पी लेना चाहिए. So hope you all have understood this chapter. I'm sending you the PDF also to complete your work. So, and of course I'm sending you the helping video also for water for all. I will take the quick revision of this chapter in the upcoming videos, children. So this is all we have understood. Water for all. Hope you all have enjoyed this chapter. So be happy and be safe.